Okay, so we'll start with a new chapter and इसको इस चैप्टर का थोड़ा सा मेथोडोलॉजी अलग रख रहा हूं मैं. So instead of going right according to our module, I will take theory as it is convenient to be taken. फिर जो जो पार्ट मिस हो जाएगा वो हम अगले लेक्चर में उतना उतना वापस करते जाएंगे कि हमने कल ये सीखा था, इसमें ये एक्स्ट्रा फॉर्मूला हमको लगने वाला है. Why? Because just to make a link between different topics. That's it. So to start with, if I'm not wrong, this chapter is waves and sound. So to start off with very basic thing, हमको ये समझना है what is a wave. अगर आपको पता है कि what is a wave, तो आपको इसका रिक्वायर्ड मैथमेटिक्स आएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स मतलब फॉर्मूलाज आपको यहाँ पे लगने वाले हैं. तो लेट अस से हमारे पास एक रिजिड वॉल है, उस पे हमने एक रस्सी बांध के रखी है, स्ट्रिंग. हम उसको अभी जर्क देने वाले हैं, वी विल मेक इट वाइब्रेट. तो वाइब्रेशन का मतलब होता है कि इस स्ट्रिंग का हर एक पार्टिकल it will start performing simple harmonic motion. Each particle of this string will perform simple harmonic motion, right? Then हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ऐसा कुछ सीखा है. सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का मतलब होता है a wave which is traveling continuously in a given medium and each particle of that medium is performing simple harmonic motion. Okay, तो इसका इसमें दो केसेस होते हैं. एक तो वेव कैन ट्रेवल इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और द वेव कैन ट्रेवल इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. Why I'm taking a case in which the wave is traveling in positive x direction. सबसे पहले I'll take a particle over here at origin, right? The particle here at origin starts its motion from mean position, है ना? तो इसका इक्वेशन होगा y is equal to a sin of omega t, right? और ये है आपका y एक्सिस, ये है टाइम या फिर ओमेगा टी एक्सिस. और प्लॉटिंग हमने कल ही देखा था, मतलब in last sessions we saw how to plot graphs. Since the wave is traveling in positive x direction, I am going to take a particle somewhere over here. Let us say some particle p, which is at a distance of x. इसको path difference भी बोलते हैं, which is at a distance of x from particle at origin. हमको दिख भी रहा है कि यह पार्टिकल जो है it is not in the same state of vibration, मतलब उसका फेज सेम नहीं है, राइट? तो ये जो पार्टिकल p पॉइंट पे है, इसका इक्वेशन मुझे लिखना होगा, तो आई कैन राइट y is equal to a sin of omega t minus delta, where delta is the difference of phase between particle at O and particle at P. Clear? Good. हमको ये पता होना चाहिए कि डेल्टा मतलब फेज डिफरेंस इस वेव वेक्टर के इनटू पाथ डिफरेंस, और वेव वेक्टर के मतलब 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू x. दिस k इज कॉल्ड एज वेव वेक्टर. ओके, तो 2 पाई बाय लैम्बडा k. तो हमको मिल गया y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t माइनस 2 पाई x बाय लैम्बडा. दिस इज equation for a simple harmonic progressive wave traveling in positive x direction. तो positive x मतलब अंदर, बीच में नेगेटिव आएगा. करेक्ट? गुड. ये it is one of the equations. There are 6 to 7 forms, right? You can write it in many forms. कैसे?
तो what you can do is y is equal to a sine omega. You can write down 2 pi n t minus 2 pi x by lambda, और एक फॉर्म हो गया. You can write y equal to a sine 2 pi t, n is 1 upon time period, ये और एक फॉर्म हो गया. y is equal to a sine 2 pi कॉमन t by t minus x by lambda, ये और एक फॉर्म हो गया. You can write y is equal to a sine 2 pi nt minus x by lambda, this is another form. Y is equal to a sine 2 pi n common t minus x upon n lambda, because मैंने n common निकाला, सेकेंड टर्म में n था नहीं, तो y is equal to a sine 2 pi n is omega t minus x, n lambda is v. So these are all forms of simple harmonic progressive wave traveling in positive x direction. I would suggest you, कोई भी एक, मैं तो ये भी नहीं रखना चाहता यार, I will just tell you कि यहाँ पे आप what you can do is the most simplest form of all, उतना ही आप याद रखो, y is equal to a sine of omega t minus kx, that's it. फिर डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन आप k की जगह पे 2 पाई बाय लैम्बडा, ओमेगा की जगह पे 2 पाई n, स्मॉल n की जगह पे 1 बाई t, ऑल यू कैन पुट. और अगर बोला होगा वेव ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, ये पॉजिटिव ही है. नेगेटिव x डायरेक्शन बोला होगा तो बीच में सिर्फ प्लस प्लस करते जाएंगे, राइट. सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के ये सारे इक्वेशंस हैं, करेक्ट. गुड. You need to remember only one, that is the first one in the list. Good. Then what else we will need is, we need to know what is superposition principle of waves. ये बेसिकली हम लोग इंटरफेरेंस में यूज करेंगे, और इंटरफेरेंस में जब यूज करेंगे तो तब हम लोग वो वेव ऑप्टिक्स में जाएगा. It is a part of wave optics when you study interference and diffraction. यहाँ पे सुपरपोजिशन हमको लगने वाला है, राइट. बट जब लगेगा, जितना लगेगा, I will tell you that time. For the time being, what I want you to know is some basics related to superposition principle. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में होता क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में होता ये है, there are two waves which are reaching at the same point at the same time. मैं भले ही दो अलग अलग waves बता रहा हूं, but it is actually the waves are traveling in the same direction along the same line. सिर्फ समझने के लिए मैं दो waves draw कर दी, right? So we have, or I can do one thing, मैं ऐसा भी कर सकता हूं. I'll show the two waves here only with different amplitudes. So I have one wave, something like this, and I have another wave which is with a smaller amplitude but same frequency because wavelength is same. What is wavelength? Lambda, crest to crest distance, है ना. तो wavelength same है, सिर्फ amplitude अलग अलग है. अब ये एक वेव है जिसका एम्पलीट्यूड A2 है, ये दूसरा वेव है जिसका एम्पलीट्यूड A1 है. What does principle of superposition tells you? It tells you that when two or more waves are reaching at a point simultaneously, then the resultant displacement at that point is the vector sum of displacement of the two waves. वेक्टर सम क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि एम्पलीट्यूड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. क्यों ऐसा बोला? क्योंकि अभी यहाँ पे दोनों का क्रेस्ट क्रेस्ट मैच हो रहा है, उल्टा भी हो सकता है ना, क्रेस्ट एंड टफ भी मैच हो सकता है, तो देयर इज कैंसिलेशन आल्सो, ऐसा भी हो सकता है, राइट. गुड. तो एज यू नो, इन दिस पर्टिकुलर केस जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इस केस में रिजल्टेंट वेव क्या होगा? इस केस में रिजल्टेंट वेव होगा अ वेव विथ अ ग्रेटर एम्पलीट्यूड, क्योंकि इस केस में दोनों एम्पलीट्यूड्स का डायरेक्शन सेम है तो एडिशन होगा.
तो द न्यू wave will have amplitude A1 plus A2. क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हमको कहीं तो इंटेंसिटी भी यूज करना है. इंटेंसिटी ऑफ a point is proportional to square of amplitude, right? Good. Then ये जो हमने ड्रॉ किया है इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. वाई कंस्ट्रक्टिव? दो वेव्स का एडिशन होके जो वेव बना है उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, मतलब बड़ा है, इसके लिए इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव. कुछ कंस्ट्रक्ट हुआ, राइट? तो आई वांट टू राइट डाउन द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन टर्म्स ऑफ टू डिफरेंट पैरामीटर्स. एक को बोलते हैं पाथ डिफरेंस, एक को बोलते हैं फेज डिफरेंस, राइट? तो पाथ डिफरेंस मतलब क्या और कब कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ये सोचो. हमारे पास ये एक वेव था, हमारे पास दूसरा एक वेव है, राइट? जब जब क्रेस्ट और क्रेस्ट दोनों वेव्स का मैच होगा, दोनों वेव्स का क्रेस्ट क्रेस्ट मैच होगा, तब तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. क्लियर? एक बार समझ गया तो फिर खत्म, यू विल नेवर फॉरगेट. तो समझ लो, बेटर है. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है और आपने बेसिकली डिफाइन भी किया है बुक में, राइट? तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव, 6 वेव, सबका क्रेस्ट क्रेस्ट मतलब द पॉइंट्स व्हिच आर इन सेम फेज दे शुड मैच. तो क्रेस्ट क्रेस्ट कब कब मैच होगा ये समझने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेव बनता कैसे है, राइट? ठीक है. तो व्हाट आई विल डू इज, मेरे लिए कंडीशंस क्या थे कि हमेशा क्रेस्ट क्रेस्ट मैच हो. तो कब मैच होगा? जब दोनों में, दोनों वेव्स, वेव नंबर 1 और वेव नंबर 2 में पाथ डिफरेंस 0 हो. देयर इज नो डिफरेंस ऑफ पाथ. व्हाट डू आई मीन बाय पाथ डिफरेंस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाथ डिफरेंस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो पाथ डिफरेंस? यस, पर्टिकुलर पॉइंट पे साइमल्टेनियसली दोनों वेव्स चल रहे हैं. रियल लाइफ एग्जांपल सिंपल है. आज 26 जनवरी है, परेड भी हुआ होगा. परेड में जब परेड होता है तो सारे के सारे पहली रो में एक साथ लेफ्ट, एक साथ राइट, लेफ्ट राइट मतलब इन फेस. इन फेस क्रेस्ट साथ में जा रहा है, दोनों वेव का ट्रफ ट्रफ साथ में जा रहा है. जब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी उसको बोलेंगे हम लोग इन फेज, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब कब होगा? एक तो पाथ डिफरेंस 0 होना चाहिए. क्लियर? या फिर मैं दूसरी वेव को शिफ्ट करता हूं बाय डिस्टेंस लैम्बडा, क्योंकि लैम्बडा से शिफ्ट करने के बाद वापस से क्या हुआ? क्रेस्ट और क्रेस्ट मैच हुआ, राइट? मतलब अगर लैम्बडा पार्ट डिफरेंस होगा तो भी कंस्ट्रक्टिव मिलेगा. मैं वापस इसको और एक लैम्बडा से शिफ्ट करता हूं, तो व्हेन यू शिफ्ट इट बाय वन मोर वेवलेंथ, अगेन यू विल सी दैट क्रेस्ट एंड क्रेस्ट इज मैचिंग. मतलब 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, 4 लैम्बडा, इन जनरल n लैम्बडा. और ये आपके बुक में कैसे लिखते हैं? 2n लैम्बडा बाय 2. वो बोलते हैं whenever the part difference is, अभी 2n, n की वैल्यू क्या डालेंगे? 0 1 2, राइट? तो when I say n की वैल्यू 0 है तो 0, when I say n की वैल्यू 1 है तो 2 लैम्बडा बाय 2, n की वैल्यू 2 है तो 4 लैम्बडा बाय 2, 6 लैम्बडा बाय 2, 8 लैम्बडा बाय 2. तो बोलते हैं ऑड, सॉरी, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2. क्या जरूरत है? आई डोंट अंडरस्टैंड. इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा, एंड लैम्बडा पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, बात खत्म. इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा टेल्स यू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. अभी इसी चीज को हम लिख सकते थे इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस. तो पहले तो फेज ऑफ अ वेव का मतलब क्या होता है वो समझना पड़ेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेव ऑप्टिक्स में बहुत लगने वाला है.
व्हाट इज फेज ऑफ अ वेव? हमको पता है कि एनी particle on this wave is in some different state of vibration. कोई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, कोई नो डिस्प्लेसमेंट पे है, कोई मिनिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, राइट? गुड। तो हाउ डू आई से कि कौन सा कहां पे है? तो हम क्या करते हैं, हम ओरिजिन से उस पॉइंट तक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो भी एंगल बनेगा उसको बोलेंगे फेज एंगल। अब मैं दो पॉइंट लेता हूं, ए पॉइंट और बी पॉइंट। अब इन दोनों में एंगल का डिफरेंस है, तो उसको बोलेंगे फेज डिफरेंस। ये मैंने एक ही वेव के दो पॉइंट लिए। कंस्ट्रक्टिव के लिए हम दो वेव्स ले रहे थे, है ना? तो फिर मैं दो वेव्स के दोनों पे एक एक पॉइंट ले सकता हूं। एंड आई कैन से दैट अब कंस्ट्रक्टिव कब कब होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वेव बनता कैसे है। हम लोग लेते हैं सर्कल, अपर मोस्ट पॉइंट ऑफ अ वेव को बोलते हैं क्रेस्ट, इसको बोलते हैं ट्रफ। इसको यहाँ से काटते हैं और इसको शिफ्ट कर देते हैं, ये बन गया आपका वेव। दिस इज हाउ अ वेव इज फॉर्म्ड, राइट? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा आपको समझा है तो समझेगा कि क्रेस्ट और ट्रफ में एंगल है पाई रेडियंस, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स, राइट? अब कंस्ट्रक्टिव का कंडीशन क्या था? क्रेस्ट और क्रेस्ट को ही मैच होना है, करेक्ट? क्लियर यहां तक? तो मुझे बताओ, मेरे पास दो वेव है, मैंने एक को बोला तो यहीं रुक जा, दूसरे को बोला जा एक चक्कर काट किया, तो कितना एंगल? 2 पाई, करेक्ट? तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? जीरो फेज डिफरेंस, या फिर 2 पाई फेज डिफरेंस, या और एक चक्कर 4 पाई, क्योंकि हर 2 पाई के बाद ही होने वाला है ना। 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई। तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा फेज डिफरेंस ऐसा, या फिर इसको डेल्टा फाई ऐसा भी लिखते हैं, इसको डेल्टा एक्स लिखेंगे उस केस में, फिर अप टू यू। मैं डेल्टा स्मॉल डेल्टा यूज करता हूं, 2n पाई, where n value is 0, 1, 2 and so on, करेक्ट? नहीं याद होता है तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाथ डिफरेंस डेल्टा is related to phase difference small delta by lambda upon 2 pi, या फिर phase difference small delta is related to path difference as 2 pi by lambda into path difference। मतलब मुझे सिर्फ पाथ डिफरेंस पता होता ना, तो मैं क्या करता, यहाँ पे डेल्टा की जगह पे एन लैम्डा डालते, कैंसल कैंसल आ गया 2 पाई एन, 2 पाई एन, राइट? तो एक ही चीज याद रखो, पाथ डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा, सॉरी, पाथ डिफरेंस की जगह पे फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, राइट? करेक्ट? तो इससे आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के कंडीशंस याद रखने में इजी होगा। फेज डिफरेंस, और याद कैसे रखता हूं, मैंने लिख भी दिया गलत, पाथ डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू फेज डिफरेंस, लिख दिया। अरे समझ में आता है, ये भी एंगल, ये भी एंगल, एंगल का स्क्वायर है, कैंसलेशन होना चाहिए। अगर मुझे मुझे डेल्टा डेल्टा क्या था? फेज डिफरेंस। फेज क्या था? एंगल था, एंगल था ना फेज। तो लेफ्ट हैंड साइड पे एंगल, तो राइट हैंड साइड पे क्या होना चाहिए? एंगल। लैम्बडा किस में आता है? मीटर में, मतलब लेंथ में। फिर डेल्टा मतलब ये भी मीटर में होता है पार्ट डिफरेंस, तो कैंसल कैंसल, तो क्या बचा? सिर्फ एंगल। तो फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू पार्ट डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है, राइट? तो कंस्ट्रक्टिव कब होगा? व्हेन पार्ट डिफरेंस इज n, n, yes, integral multiple of wavelength, or in terms of phase difference E1 0 2 pi 4 pi, मतलब even multiple of pi, right? Good. Similarly फिर डिस्ट्रक्टिव कब होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए what is the condition?
तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए व्हाट यू कैन डू इज crest of one wave should match with trough of another. राइट, गुड। तो मैंने तो बता ही दिया मैंने क्या किया, मैंने इसको शिफ्ट किया। कितने से शिफ्ट किया था? π/2 नहीं, λ/2। राइट, क्यों? क्योंकि आपको पता है इफ आई एक्सटेंड दिस वेव हियर, मैं इसको सिर्फ एक्सटेंड कर रहा हूं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस लैम्बडा है ना, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज लैम्बडा, तो फिर हाफ ऑफ दिस इज हाउ मच? λ/2। तो मुझे डिस्ट्रक्टिव चाहिए अगर, तो फिर मुझे एक वेव को λ/2 से शिफ्ट करना पड़ेगा, तब जाके एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के ट्रफ के साथ मैच होने वाला है, एंड देन वी विल गेट कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। गुड। तो डेल्टा क्या आएगा? n λ/2, where n is 0 1 2 3, राइट, करेक्ट। 0 डालोगे तो वो कंस्ट्रक्टिव कंडीशन नहीं बन जाएगा क्या? बनेगा ना। if I put n equal to 0, it will become 0। हाँ, या तो फिर इसको एक काम करो, इसको m बोल देते हैं और m को स्टार्ट करेंगे 1 से। ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 चाहिए, क्योंकि अगर मैं m की वैल्यू 2 डालूंगा तो वापस से लैम्बडा बन गया, इसलिए वी नॉर्मली से इट एज ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 करने के लिए क्या करेंगे फिर यहाँ पे, एज यू सेड क्या करेंगे, n+1। ठीक है, फिर भी नहीं होगा। इफ आई पुट n इक्वल टू 0, λ/2 आ गया। इफ आई पुट n इक्वल टू 1, 2 λ/2 आ गया। तो 2n+1, तो हमको यहाँ पे सिर्फ 2n+1 करना पड़ेगा। नाउ पुट n इक्वल टू 0, पहली वैल्यू क्या मिली? λ/2। पुट n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, 5 λ/2। so 2n+1 λ/2 gives you condition for destructive interference। ओके, तो अब इसी को आप लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस, दैट इज λ/2π, बराबर ना, 2π/λ इंटू डेल्टा। तो 2π/λ और डेल्टा क्या था? 2n+1, कैंसल कैंसल, 2 कैंसल, तो क्या मिला? 2n+1 पाई, n इक्वल टू 0 पाई। वो मैंने तो पहले ही बताया, क्रेस्ट और ट्रफ में एंगल कितना होता है? पाई। तो पहली बार डिस्ट्रक्टिव कब होगा? पाई पे। अगली बार कब होगा? एक चक्कर और लगा के आओ, पाई प्लस 2 पाई मतलब कितना? 3 पाई। अगली बार कब होगा? 3 पाई प्लस 2 पाई, 5 पाई। तो वही है, n इक्वल टू 1 मतलब पाई, 2 मतलब n इक्वल टू 0 मतलब पाई, n इक्वल टू 1 मतलब 3 पाई, 2 मतलब 5 पाई। तो ये आ गया आपका कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट। इस चैप्टर के लिए इतना सफिशिएंट है। जब वेव ऑप्टिक्स देखेंगे तो हमको और आगे जाना पड़ेगा इससे, राइट। फिर उसमें हम लोग दो सोर्सेस लेंगे, फिर एक्चुअल पार्ट डिफरेंस निकालेंगे। दो सोर्सेस में से लाइट आ रहा है, व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस बिटवीन दीज टू रेज कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेस व्हिच आर कोहेरेंट इन नेचर, वो हम देखेंगे बाद में, मोनोक्रोमेटिक, कोहेरेंट, व्हाटएवर इट इज, विल सी दैट लेटर, नॉट नाउ। तो फॉर दिस चैप्टर सफिशिएंट, गुड। सिर्फ इतना पता होना चाहिए, इंटरफेरेंस में दो वेव्स एक पॉइंट पे एक ही साथ पहुंच रहा है, एक पहले गया दूसरा बाद में गया, नथिंग हैपनिंग, नो इंटरफेरेंस, गुड। बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं ना, इंटरफेरेंस में क्या होता है? इंटरफेरेंस में क्या हो रहा है? एक वेव का
एनर्जी और दूसरे वेव का एनर्जी ऐड होके रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. सो व्हाट इज इंटरफेरेंस? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट टॉपिक that you should know is beat formation. So it is related to interference, of course, but we will not use many concept of interference. अभी interference में as you see दो waves के amplitudes different हो सकते हैं, ये ना amplitude different, लेकिन हमने wavelength और मतलब frequency, क्योंकि wavelength is related to frequency, है ना, हमने वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम लिया है. बीट्स में उल्टा होता है. यू से दैट व्हेन टू और मोर वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड but slightly different frequencies, when they reach at the same point at the same time, there is formation of beat, right? So beat ये concept होता है for sound waves. This is beat. साउंड नो साउंड, साउंड नो साउंड, साउंड नो साउंड. जब साउंड है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, राइट? उसको बोलते हैं वैक्सिंग, वैक्सिंग. जब नो साउंड है उसको बोलते हैं वेनिंग, राइट? तो प्रॉब्लम ये है कि हमको पता है, हमको क्या पता है, साउंड वेव्स आर नॉट ट्रांसवर्स वेव. व्हाट आर साउंड वेव्स? लॉन्गिट्यूडनल. लॉन्गिट्यूडनल वेव इज basically a combination of alternating crest, no, compressions and rarefactions. तो ऐसा है, राइट? ये भी एक वेव का कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन. मेरे पास दूसरा वेव है, दूसरे वेव का कंप्रेशन, दूसरे वेव का रेयरफैक्शन. अभी ये दोनों वेव्स का इंटरफेरेंस हो रहा है, ये डायग्रामेटिकली बताना इज अ डिफिकल्ट टास्क. तो हम लोग इसलिए बीट फॉर्मेशन में भी हम लोग ट्रांसवर्स वेव का ही डायग्राम ड्रॉ करके समझा देते हैं उसको. यू कैन नॉट शो विद डायग्राम, नहीं हो सकता वो. तो फिर अभी बीट फॉर्मेशन का जैसे मैंने आपको केस बताया. ओके, सो लेट्स हैव टू वेव्स. मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया these two waves will have same amplitude, slightly different frequency. Slightly, right? एकदम ऐसा नहीं कि एक 10 हर्ट्ज का दूसरा 1000 हर्ट्ज का. 10, 10, 10.5, 10 और 11 ऐसा. तो ये हो गया हमारा पहला वेव, और हम लेंगे एक दूसरा वेव यहाँ पे with the same amplitude, slightly different frequency, मतलब slightly different wavelength, क्योंकि frequency and wavelength are related more or less like this, right? Amplitudes मैंने same दिखाने की कोशिश की है, but frequency मतलब wavelength is different. जब इन दोनों का इंटरफेरेंस होगा तो what you get is, अभी as you just saw in the last, on the last page आपने just देखा था, what did we see here? The resultant wave is a well defined pattern. What is well defined? मतलब प्रॉपरली एक क्रेस्ट में नोट कर पा रहा हूं, मैं ट्रफ नोट कर पा रहा हूं. इट इज अ वेल डिफाइंड पैटर्न. ऐसा क्यों हुआ था? एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी की वजह से हुआ था. या तो टोटल एडिशन या तो टोटल कैंसलेशन, है ना? यहां पे क्या होगा फिर? हियर यू गेट अ कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न, और उस कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न को बोलते हैं बीट्स. तो द रिजल्टेंट हियर विल बी something like this. एम्पलीट्यूड बढ़ते जाएगा, it will reach a maximum, then it will start falling down again, right? क्यों? क्योंकि किसी पॉइंट पे देखो तो अभी you look here, cancellation,
दोनों मीन पे है, नथिंग। मीन पे मतलब डिस्प्लेसमेंट इज 0, 0 प्लस 0 इज 0, तो 0 प्लस 0 इज 0। अब यहाँ देखोगे तो वेव का ये पॉइंट और दूसरी वेव का ये पॉइंट, देर एडिंग अप मतलब दे विल गिव यू सम एम्पलीट्यूड, राइट। तो ये जो ऐसा बना है इसको बोलते हैं बीट फॉर्मेशन। तो हम क्या करते हैं अभी बीट, तो दिस इज कॉम्प्लिकेटेड, तो हम क्या करते हैं, हम एक एनवलप ड्रॉ कर देते हैं, एक कवर में डाल दिया, राइट। तो इसका जो मैक्सिमम पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ वैक्स, लाउड साउंड विल बी हर्ड, और जहां पे कुछ भी नहीं सुनाई देगा वेन, दैट इज वेन। सो दीज पॉइंट्स हियर आर वेन, नथिंग विल बी हर्ड, करेक्ट, राइट। द नंबर ऑफ वैक्सेस और वेन्स हर्ड, पर वेन तो सुन नहीं सकते, इसलिए द नंबर ऑफ वैक्सेस हर्ड पर सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट। तो सबसे पहले तो अब मैथमेटिकली लिखो, इक्वेशन लगेंगे हमको, कैसे करेंगे, और हमको वैक्स का एम्पलीट्यूड भी निकालना पड़ेगा। हमने क्या बोला, टू वेव्स मतलब y1 विथ सेम एम्पलीट्यूड ए, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी 2 पाई n1t, ओमेगा टी मतलब 2 पाई n, राइट। दूसरा a साइन 2 पाई n2t, तो one in the black is y1 and one in the blue is y2, क्लियर। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बताता है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज एडिशन, वेक्टर सम, तो इसको ऐड करेंगे, a साइन ऑफ 2 पाई n1t प्लस a साइन ऑफ 2 पाई n2t, फिर a कॉमन, साइन ऑफ c प्लस साइन ऑफ d, मैंने इंटेंशनली बोला ये बिकॉज आई वांट यू टू नो व्हाट इज साइन c प्लस साइन d। What is sin C plus sin D formula? 2 sin C plus D by 2 into sin C minus D by 2, बराबर नहीं, 2 sin C plus D by 2 ठीक है, into cos of C minus D by 2, करेक्ट है। फॉर्मूलाज याद नहीं आपको, साइन सी प्लस साइन डी, कोई बात नहीं, नहीं याद तो कोई इशू नहीं है। sin c plus d, sin c plus sin d, it is not sin of c plus d। what is sin of c plus d, what is sin of a plus b, sin a cos b plus cos a sin b, तो sin c cos d plus cos c sin d, वो होता है sin of c plus d, ये sin c plus sin d है, लेकिन ये sin c plus sin d sin of c plus d, sin of a plus b से ही आता है ये, यू नो हाउ, नहीं पता, बता देता हूँ फिर, क्योंकि एक्चुअली इट इज सिंपल, एक फॉर्मूला, one formula means you know all the trigonometric formulas, एक single, if you know what is sine of a plus b, this is start and end of trigonometry, कैसे, sin a cos b plus cos a sin b, राइट, गुड। फिर आपको ये पता है तो ये तो पता होगा ही, क्योंकि सिर्फ प्लस की जगह पे बीच में माइनस, मतलब एक फॉर्मूला पता है तो दूसरा पता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू नो दिस। फिर अगर आपको ये पता है तो आपको cos ऑफ a प्लस बी भी पता होगा, cos ऑफ a प्लस बी, cos याद कैसे रखते हैं, साइन साइन cos, और cos के लिए cos cos cos, तो cos a cos b, यहाँ पे बीच में प्लस तो यहाँ पे बीच में माइनस, उसको लिखोगे साइन a साइन b। फिर आपको cos ऑफ a प्लस बी पता है तो cos ऑफ a माइनस बी पता ही होगा,
cos A cos B प्लस sin A sin B, राइट। हमको क्या चाहिए था, साइन ऑफ C प्लस D, साइन ऑफ C प्लस साइन ऑफ D। इसको मैं C बोल सकता हूँ, इसको मैं D बोल सकता हूँ, दोनों को ऐड कर दूंगा। अगर साइन ऑफ C माइनस साइन ऑफ D चाहिए तो दोनों को सबट्रैक्ट कर दूंगा। cos ऑफ C प्लस cos ऑफ D चाहिए तो इन दोनों को ऐड करूंगा। cos ऑफ C माइनस cos ऑफ D चाहिए तो इन दोनों को सबट्रैक्ट करूंगा। एक फॉर्मूला से 3 पता थे, उस 3 से और 4 पता है, 8। इससे पूरा ट्रिग्नोमेट्री पता है कैसे। I asked you many times, what is sine of pi by 2 plus theta? Sine of pi by 2 plus theta। ये है तो पाई डाल देते हैं बाई 2, इसको थीटा बोल देते हैं। तो यहाँ पे पाई बाई 2 ये थीटा, यहाँ पे पाई बाई 2 ये थीटा। cos ऑफ पाई बाई 2 0, मतलब सेकेंड टर्म तो गया। साइन ऑफ पाई बाई 2 1, मतलब ये 1 हो गया। तो साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा इज cos थीटा। So I told you one formula means वो trigonometry you know, right? तो बाकी का जो है I will keep it in one session which I am going to keep for all my students। उसमें पूरा trigonometry पूरा mathematics लेंगे। अब फिलहाल के लिए ये क्या आता है वो समझ लो, है ना। ये आता है 2 sin C plus D by 2 into cos of C plus D by C minus D by 2। वो साइन ऑफ A प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस, ऐड करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद ये आता है। अब यहाँ पे और एक कंफ्यूजन होता है, सी माइनस डी या डी माइनस सी, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? cos इज इवन फंक्शन। व्हाट इज इवन फंक्शन? मुझे बताओ, f ऑफ x, अगर ये x हुआ, जरूरत पड़ेगी, आई एम सॉरी बट मुझे बताना पड़ेगा, ये आई हैव टू टेल यू। अगर मैं x की जगह पे माइनस एक्स डालता हूं तो क्या लिखोगे, राइट? मतलब f ऑफ माइनस एक्स इज माइनस f ऑफ x, इसको बोलते हो ऑड फंक्शन, राइट। अगर मैंने f ऑफ x को x स्क्वायर लिया होता तो f ऑफ माइनस एक्स भी होता आपका x स्क्वायर, मतलब f ऑफ माइनस एक्स आता आपका f ऑफ x, इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। अभी इसका साइन और कॉस के साथ क्या रिलेशन? सिंपल है, यह है साइन x, साइन x, है ना। तो मैं जब साइन थीटा में माइनस थीटा डालता हूं, यू शुड नो इट बिकम्स, ओके लेट मी गो वन स्टेप अहेड। उनको फोल्डिंग सिखाना पड़ेगा, आप कोई बात नहीं, डजंट मैटर, गुड। एक मिनट, ये आपका मोर और लेस साइन वेव है, मोर और लेस। अगर नहीं तो फिर उसको आप और यहाँ शिफ्ट करो, ये आपका साइन वेव है। साइन 0 पे 0, फिर यहाँ पे बढ़ेगा, नेगेटिव के लिए ऐसा आएगा। जब मैंने फोल्ड किया, फोल्ड किया मतलब बराबर इस एक्सिस के अलोंग फोल्ड किया, तो ऊपर का पार्ट f ऑफ प्लस एक्स है, नीचे का पार्ट f ऑफ माइनस एक्स है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x आता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ उल्टा हो गया ना, क्रैश का ट्रफ बन गया ना। आ रहा है क्या समझ में? क्रैश का ट्रफ बना। क्रैश का ट्रफ बनने का मतलब क्या होता है? f ऑफ माइनस एक्स इज माइनस f ऑफ x। इफ आई फोल्ड इट, मैं इस लाइन के अलोंग अगर फोल्ड कर रहा हूं तो क्या होगा, ये पॉइंट यहां शिफ्ट हो जाएगा, क्रेस्ट और ट्रफ मैच होगा। मतलब ये +1 वैल्यू और -1 वैल्यू विद नेगेटिव साइन, एग्जैक्ट मैचिंग ओवरलैपिंग नहीं हुआ, यहाँ पे मिरर इमेज बना, इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। कॉस का क्या होगा फिर? व्हाट इज कॉस? व्हाट इज कॉस? व्हाट इज कॉस? कॉस
cos wave looks like this. Cos 0 is 1, है ना? Cos 0 is 1. Then cos 90 is 0. Cos minus 90 is 0. Cos 180 is -1. Cos of minus 180 is -1. होल्ड करो, एग्जैक्टली ओवरलैप। इसका मतलब ये होता है इवन। अभी मैंने इवन फंक्शन में क्या लिखा, f ऑफ माइनस एक्स और f ऑफ एक्स सेम, तो cos ऑफ माइनस थीटा मतलब cos थीटा, पर साइन ऑफ माइनस थीटा का मतलब होता है माइनस साइन थीटा। हाँ, इसका मतलब वो जो फॉर्मूला हमने लिखा था, यहाँ पे c माइनस डी लिखो, 45 माइनस 30 करो या 30 माइनस 45 करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला वहां पे। इसलिए यहाँ पे कॉस में अननेसेसरी मेहनत नहीं करना याद रखने में। कॉस ऑफ डी माइनस सी था, क्या फर्क पड़ता है, वो इवन फंक्शन है, तो c माइनस डी या d माइनस सी इज जस्ट फाइन हियर। करेक्ट, गुड। अब हम आ जाएंगे वापस से बेड फॉर्मेशन पे। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो अप्लाई तो करो, अब करना तो पड़ेगा आपको, तो क्या करेंगे, एंड if you apply this formula, y is equal to a 2 sine of cos of, पहला एंगल 2 पाई n1t, दूसरा 2 पाई n2t। मैं आलसी हूं इसलिए 2 पाई n1t 2 पाई t n1 प्लस n2, नीचे डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। क्लियर यहाँ पे, एग्जैक्टली, गुड। तो यहाँ पे 2 पाई t n1 माइनस n2 बाय 2। क्लियर क्लियर, यस। व्हाट इज a प्लस b बाई 2, या फिर एवरेज ऑफ टू नंबर्स कैसे डिफाइन करते हो, वन नंबर प्लस अदर नंबर बाय, तो isn't it average value of frequencies of the two waves? तो ये लिखोगे 2a साइन ऑफ 2 पाई n एवरेज t, n एवरेज t बाई 2, नहीं 2 तो गया, 2 पाई n एवरेज t इनटू कॉस ऑफ n1 माइनस n2 बाई 2। इसको कुछ नोटेशन आप दे सकते हो, व्हाटएवर यू वांट टू गिव, इफ यू डोंट वांट टू गिव दैट इज परफेक्टली फाइन, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। अभी बुक्स में क्या नोटेशन यूज किया है आई डोंट रिमेम्बर, मुझे नोटेशंस याद रखना ना आता है ना कभी रख पाता हूँ, तो आई जस्ट वांट टू सी कि आपके बुक्स में नोटेशन क्या यूज किया है। समथिंग दे मस्ट हैव यूज्ड, आई डोंट नो, कैपिटल एन स्मॉल एम व्हाटएवर इट इज, तो इन्होंने भी कुछ नहीं पूछा लिखा है, गुड गुड पीपल। तो 2 पाई t n1 माइनस n2 बाई 2, करेक्ट। दो वेव्स का इंटरफेरेंस होने के बाद वेव ही बनता है ना, वेव ही बनेगा ना, ये वेव ही है, लेकिन ये वेव है, ये फाइनल जो हुआ उसको बोलते हैं बेड फॉर्मेशन। तो ये जो एनवेलप ड्रॉ किया था ये उस एनवेलप का इक्वेशन है। तो हाउ डू यू डिफाइन, व्हाट इज द जनरल मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर अ वेव, एम्पलीट्यूड इनटू साइन ऑफ ओमेगा, तो इसका मतलब 2a cos ऑफ 2 पाई t n1 माइनस n2 बाई 2, ये हो गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इनटू साइन ऑफ 2 पाई n एवरेज t। मतलब मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू r साइन ऑफ 2 पाई n एवरेज t, where this r is resultant amplitude which is 2a cos of 2 pi t n1 minus n2 by 2। किसका एम्पलीट्यूड, वो जो एनवेलप ड्रॉ किया हमने। और डिटेल समझना होगा आपको, एम्पलीट्यूड इटसेल्फ इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। नॉर्मली क्या होता है, एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट बिकॉज एम्पलीट्यूड गिव्स यू जस्ट द पीक वैल्यू, करेक्ट। अगर आपको थोड़ा सा भी ऑल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थोड़ा सा भी याद है
लिटिल बिट, आप ऐसा लिखते हो E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। अल्टरनेटिंग में क्या बोलते हैं इसको, पीक वैल्यू। पीक वैल्यू मतलब ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो, ये कभी भी आप E0 ऑफ टी नहीं लिखते, क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट है विद टाइम, मतलब एम्पलीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। तो बीट में मैंने कैसे बताया था आपको, मैंने अभी बीट में जो एनवलप ड्रॉ किया उसके अंदर देखो रिपल्स, एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है ना विद टाइम, पहले कम था फिर बढ़ गया फिर मैक्सिमम हुआ फिर कम होने लगा, मतलब एम्पलीट्यूड इटसेल्फ इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्यों बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं, अगले टॉपिक में, अगले चैप्टर में, इसी चैप्टर के अगले पार्ट में, स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव इज अ वेव व्हिच अपीयर्स स्टेशनरी, राइट, करेक्ट। इसका इक्वेशन और उसका इक्वेशन में स्लाइट डिफरेंस है। तो याद कैसे रखते हैं, याद ऐसा रखते हैं, बीट फॉर्मेशन, दो वेव्स का फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट था, और स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होने का मतलब क्रेस्ट क्रेस्ट थोड़ा सा शिफ्टेड था, मतलब जब इंटरफेरेंस होगा, सुपरपोजिशन होगा, तो वेल डिफाइंड पैटर्न नहीं मिलेगा। वेल डिफाइंड पैटर्न नहीं मिलेगा मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा फिर कम होता जाएगा, मतलब एम्पलीट्यूड आर में फंक्शन ऑफ टी होना चाहिए। वहां पे उल्टा है, वहां पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड में टी नहीं दिखेगा आपको, राइट, क्लियर। क्योंकि बहुत बार ऐसा पूछते हैं आपको, ये ऐसा इक्वेशन आ जाएगा तो पता होना चाहिए। देन नाउ मैंने क्या बताया था आपको कि जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तब मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा, उसको हमने बोला था वैक्स। तो हमको देखना है कि कंडीशन ऑफ वैक्स क्या है। कंडीशन ऑफ वैक्स का मतलब क्या कि आर की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। आर डिपेंड करता है इस फैक्टर पे, करेक्ट, क्योंकि ए, ये तो दोनों वेव्स का इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड था और दोनों वेव्स का इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड कांस्टेंट था। तो आर मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और कॉस की वैल्यू मैक्सिमम मतलब, सो आर इज मैक्सिमम इफ एंड ओनली if cos of 2 pi t n1 minus n2 by 2 is either +1 or -1। cos की मैक्सिमम वैल्यू +1 और -1 इन नेगेटिव डायरेक्शन होता है, राइट। साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू +-1 ही होती है, tan की इंफिनिटी तक जाती है। तो देन cos की वैल्यू +1 -1 कब होती है, 0 पाई माइनस पाई, 2 पाई माइनस 2 पाई, 3 पाई माइनस 3 पाई, ऐसा होता है ना। मतलब इन शॉर्ट आई कैन राइट डाउन दिस एज 2 पाई टी n1 माइनस n2 बाई 2। मैं 2 पहले ही कैंसिल कर सकता था, बट आई एम रिटेनिंग इट फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई। इसको लिखता हूँ p पाई, p इज 0 +-1 +-2, क्योंकि p 0 डालूंगा तो cos 0 1, p 1 डालूंगा तो cos पाई -1, माइनस डालूंगा तो वापस -1, cos 2 पाई, p की वैल्यू 2 डालूंगा 2 पाई +1, गुड। तो इन शॉर्ट आई हैव दिस 2 पाई t n1 minus n2 upon 2 as p pi, cancel 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 cancel, t is equal to p upon n1 minus n2। so these are the time not time interval, these are the instants of time। ये वो टाइम है जब जब हमको लाउड साउंड मतलब बैक्स सुनाई देगा, राइट। तो कब कब सुनाई देगा, p की पहली वैल्यू क्या डाली हमने, मैंने बताया 0, फिर +-1, फिर +-2, ठीक है मैं सिर्फ प्लस वैल्यू ले लूंगा। तो जब मैं 0 डालूंगा तो यहां से स्टार्ट हुआ है ना, तो 0 पे मुझे लाउड साउंड सुनाई दिया, फिर फिर एंड देन
so on so forth. Correct? Right. Clear है यहाँ तक? By definition of beat frequency, the time interval between two waxes gives you frequency of beat, right? तो क्या करेंगे, इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे, मतलब टाइम पीरियड. बेसिकली व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव वैक्सेस. ठीक है, फिर उसका रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज द टाइम पीरियड बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव वैक्सेस? किसी भी दो साइमल्टेनियस को माइनस कर लो. तो मैं अभी किसी भी दो बोला है तो हम स्मार्ट है ना, पहली वाली 0 है तो इसको ही करेंगे ना फिर हम लोग. व्हाई शुड आई बी टेकिंग दीज टू? इन दोनों को माइनस कर लिया तो हम क्या मिला? टाइम पीरियड इज, मतलब सिंपल 1/, बीट फ्रीक्वेंसी क्या है बाय डेफिनेशन? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. तो n is 1/t, that is n1 minus n2. सो अगर आपको दो सोर्सेस दिए हैं और आपको बीट फ्रीक्वेंसी निकालना है तो दोनों सोर्सेस के फ्रीक्वेंसी फाइंड करो, उसको सबट्रैक्ट करो, डन. क्लियर है यहां तक? गुड. अभी वैक्स का देख लिया तो वेन का कंडीशन देख लेते हैं. कंडीशन फॉर वेन ऑफ फॉर जो भी होगा वो. ओके. तो वैक्स मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मतलब वो कॉस की वैल्यू मैक्सिमम. वेन मतलब नो साउंड, मतलब नो इंटेंसिटी, मतलब कॉस ऑफ 2πt n1 minus n2/2 should be 0. और cos 0 कब होता है? π/2, 3π/2, 5π/2, right? So in short, you can write down this as cos of 2p plus 1. You can write down cos of 2p plus 1 π/2. अगर मैं p की वैल्यू 0 डालता हूं तो π/2, p की वैल्यू 1 डालता हूं तो 3π/2, है ना? गुड. तो इसका मतलब 2πt n1 minus n2/2 is equal to 2p plus 1 π/2. गया, और ये भी गया, ये भी गया. दिस ऑल्सो वेंट. तो इसका मतलब t is 2p plus 1 upon 2 n1 minus n2. पहला वेन कहाँ बनेगा? दो वैक्स के बीच में बनेगा, है ना? तो तुम सॉल्व करो मत करो, मैं बता देता हूं. पहला वेन क्या आएगा? पहला वेन बनेगा यहाँ पे, क्योंकि पहला वैक्स था 0 पे, दूसरा वैक्स था 1/n1 - n2 पे, मतलब इसके हाफ पे. करके देखो अब, पुट p इक्वल टू 0, 1/2 n1 - n2, राइट? और तो डायग्राम नहीं बता दिया था तो दिस इज व्हाट आई वांट यू टू लर्न. अरे डायग्राम ही बता रहा है, मैंने ड्रॉ भी किया था. दो वेन के बीच में एक वैक्स, दो वैक्स के बीच में एक वेन. तो this equation itself here was telling me that पहला वैक्स 0 पे, दूसरा वैक्स 1/n1 - n2 पे, तो पहला वेन इन दोनों के बीच में, एग्जैक्टली बीच में, मतलब हाफ. नीचे डिनोमिनेटर में n1 - n2. दूसरा कहां बनेगा? 1 और 2 के बीच में. 1 और 2 के बीच में क्या आता है? 1.5, मतलब क्या आता है? 3/. अरे ये 1 और 2, उसका बीच का पॉइंट 1.5, मतलब 3/2.
0 और 1 उसके बीच का पॉइंट 0.5 मतलब 1/2, तो 0.5 1.5 2.5 मतलब 1/2 3/2 5/2. Okay, this is where you will get veins. और अगर बाय डेफिनेशन इन दोनों का डिफरेंस, कॉन्जिक्यूटिव का डिफरेंस टाइम पीरियड होता है, द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव वैक्सेस और वेन्स, बट वेन्स सुन नहीं सकते ना, इसलिए हम वैक्स बोलते हैं। ये भी टाइम पीरियड है, तो ये भी वही आएगा, माइनस करके देखो वही आएगा। 1.5 में से 0.5 माइनस किया तो 1 ही आता है, कौन सा बड़ी बात है वो, राइट? तो फ्रीक्वेंसी विल बी अगेन द सेम, करेक्ट? गुड। तो आई होप कि बीट फ्रीक्वेंसी के कुछ बेसिक चीजें आपको याद रहेंगी। बीट फॉर्मेशन और आगे जो टॉपिक आएगा स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन, डिफरेंस यही है, बीट फॉर्मेशन में दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी मतलब वेवलेंथ स्लाइटली डिफरेंट है, एग्जैक्टली सेम एम्पलीट्यूड नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसीज मतलब स्लाइटली डिफरेंट, करेक्ट? तो उससे बाकी का मैथमेटिक्स आप कर सकते हो। देन नेक्स्ट टॉपिक दैट यू नीड, और इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं और ये इतना इजी है, इफ यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि फॉर्मूलाज का मतलब क्या होता है, तो आई टेक इट ऑन टू न्यू पेज, दैट इज बेटर थिंग टू डू। डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट आप लाइट में भी देखते हो, आप साउंड में भी देखते हो। यहाँ पे हम साउंड में देख रहे हैं, लाइट में क्या होता है बता देता हूँ। अगर एक सोर्स है, जैसे ये एस्ट्रोनॉमी में बहुत यूज होता है, बाय द वे इन एस्ट्रोनॉमी यू यूज इट अलॉट, तो एक्सपैंडिंग यूनिवर्स इससे आया है। ओके, इफ आई हैव अ स्टार विच इज इमिटिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 4500 मतलब ब्लू लाइट इन शॉर्ट, और क्योंकि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है तो वो स्टार हमसे दूर जा रहा है। दूर जाने का मतलब क्या होता है? दूर जाने का मतलब ये होता है, ये था, मैंने ब्लू लाइट बताया ना, तो ब्लू लाइट ड्रॉ करेंगे, तो ये था ब्लू लाइट। अभी ये एक सोर्स है, यहाँ पे एक स्टार है जो ब्लू लाइट इमिट कर रहा है, इट इज गोइंग अवे। गोइंग अवे का मतलब क्या होता है? ये जो क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस है ना, ये भी बढ़ेगा। अब ये बढ़ेगा का क्या मतलब होता है? यस, इट विल बी शिफ्टिंग टूवर्ड्स द रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। रेड में नहीं कन्वर्ट होगा, लेकिन टूवर्ड्स रेड एंड, मतलब 4500 का 5000 हो गया, राइट? तो स्पेक्ट्रम हम लोग कैसा देखते हैं? हम बोलते हैं ये रेड, हम बोलते हैं ये ब्लू, ब्लू के नीचे वॉयलेट, मतलब राइट, ब्लू या वॉयलेट, ब्लू के नीचे वाला, वॉयलेट के नीचे वाला अल्ट्रा वॉयलेट, रेड के ऊपर वाला इंफ्रारेड। एनीथिंग मोर देन 7000 इज IR, एनीथिंग लेस देन 3000 इज UV। मेरे पास एक लाइट था, मान लो आई हैड ग्रीन लाइट 5000 एंगस्ट्रॉम एंड द सोर्स वाज मूविंग अवे फ्रॉम अस, मतलब 5000 का हो जाएगा 6000, किसके तरफ शिफ्ट हुआ? रेड की तरफ, इसको बोलते हैं रेड शिफ्ट। अगर ये सोर्स हमारे पास आ रहा होता तो जो क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस है वो स्क्वीज होता ना, कम हो जाता, मतलब 5000 से कम दिखता। कहाँ शिफ्ट हो रहा है? ब्लू की तरफ, क्या बोलेंगे? ब्लू शिफ्ट। ये आगे काम में आएगा तो आपको पता है। अभी इसको हम साउंड में कैसे लाएंगे? साउंड में हम ऐसे लाएंगे, दिस इज हाउ यू ब्रिंग इट इन साउंड। सिटिंग हियर, कोई एक हॉर्न बजाते आया है, वी आर स्टेशनरी, वी आर ऑब्जर्वर, वी आर लिसनर यहाँ पे, क्योंकि हम ऑब्जर्व देख नहीं रहे, हम सुन रहे हैं, वी आर लिसनर, राइट? वो तो बेचारा अपनी अपनी गाड़ी का हॉर्न जो था उतना ही बजा रहा है, हमें क्या सुनाई देता है? इंटेंसिटी बढ़ रहा है, राइट? इंटेंसिटी बढ़ रहा है, ये याद रखना। इंटेंसिटी कब बढ़ा? जब सोर्स और लिसनर में डिस्टेंस कम हुआ। देयर आर टू वेज ऑफ थिंकिंग, राइट? गाड़ी पे कोई जा रहा है हॉर्न बजाते बजाते, हमारे पास आ रहा है,
वो उसकी मजबूरी, डीजे दिखा तो हम भाग के जाते हैं। तो इधर सोर्स कैन मूव टूवर्ड्स अ स्टेशनरी लिसनर और अ स्टेशनरी लिसनर और a listener can move towards a stationary source or both can move towards each other. करेक्ट। अब जो भी साउंड सोर्स था उसने जो कोई भी फ्रीक्वेंसी इमिट किया होगा उसको मैं बोलूंगा रियल फ्रीक्वेंसी एन। दैट इज द फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड सोर्स, राइट। जो मैं सुन पा रहा हूं दैट इज एपरेंट फ्रीक्वेंसी एन, and that frequency will definitely depend on three other things. One is what is the speed of sound in that medium, मतलब हमारे लिए air. What is the speed of sound of the what is the speed of listener or observer or both? Sorry, source or both. अभी यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस कब लगाएंगे वो देखते हैं। There are in total 8 conditions. 8 में पहला, source is moving towards listener at rest. दूसरा, right? तीसरा, right? चौथा, source moving away. पांचवा, listener moving away. Sixth, seventh, source trying to catch listener. Source following listener. आठवा, listener following source. राइट। 8 आखिरी के जो 2 है वो हम लोग कंक्लूसिवली कुछ नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उसमें डिपेंड करेगा कि वेलोसिटी ऑफ सोर्स ज्यादा है या वेलोसिटी ऑफ लिसनर ज्यादा है, राइट। तो आपके सिलेबस के स्कोप के अकॉर्डिंग वी विल सी, एक एक करके मैं अब बेसिक्स में जाऊंगा। कैसे याद रखना ही नहीं है, आई डोंट वांट यू टू रिमेंबर। आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है apparent frequency is the frequency that listener hears, n is the original frequency, v is the velocity of sound in that medium, air for us 331 meter per second if calculated using bulk elasticity। वो हमने देखा था, एक में गामा पी था, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी बोला था उसको, याद है क्या? एडियाबैटिक इलास्टिसिटी मतलब कहाँ देखा था हमने? You also told me you did not take adiabatic elasticity. Processes में sound जब generate होता है, if it is going from one point to another point, under the assumption that this sound wave will not change the temperature of the medium, that is isothermal elasticity, and it turns out to be equal to just P, pressure, change in pressure of the medium, क्योंकि जब compression कर रहे हो मतलब pressure change हो रहा है। एडियाबैटिक मतलब चेंज इन टेम्परेचर है, वो सिर्फ गामा मतलब स्पेसिफिक हीट का रेशो, उससे पी को मल्टीप्लाई करते हो, राइट। गुड। तो अगर आप आइसोथर्मल इलास्टिसिटी से V की वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो इट इज 329 मीटर पर सेकेंड, मतलब आपने गामा से मल्टीप्लाई नहीं किया, राइट। वो अंडर रूट ऑफ पी आता है बेसिकली। अगर आप एडियाबैटिक से कर रहे हो तो दैट टर्न्स आउट टू बी 331 मीटर पर सेकेंड। वो हम देखेंगे, वो दिया होता है नॉर्मली। लेट अस फोकस हियर, यहाँ पे लिसनर और यहाँ पे सोर्स ऐसा रहने ही वाला है। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए, अगेन इट इज जस्ट लाइक ट्रिग्नोमेट्री, ओनली वन फॉर्मूला यू नीड एंड दिस इज दिस वन। अब मैंने आपको पूछा था कि जब एक गाड़ी वाला हॉर्न बजाते आ रहा है, ही सेड उसका इंटेंसिटी ज्यादा सुनाई देगा, मतलब whenever the distance between source and listener is decreasing, apparent frequency is greater than the real, मतलब NA by
n इसका रेशो ग्रेटर देन 1 होगा, ये आपको पता है। खत्म, 8 के 8 केसेस खत्म। कैसे? आप देखो, मैं यहाँ पे हमेशा इसको ऐसा लिखने वाला हूं बिकॉज इट इज मोर इजी टू अंडरस्टैंड। लेट अस टेक केस नंबर 1। आप बोलो कौन सा केस लेना है, वो लेते हैं। ऑब्जर्वर एट रेस्ट या फिर मतलब लिसनर एट रेस्ट। सो व्हेन यू से लिसनर एट रेस्ट, मतलब you are telling me that VL is 0 and source is moving towards listener. Source is moving towards listener, right? इसका मतलब इस फॉर्मूला में सबसे पहले इसको गायब करो क्योंकि VL 0 था। ओवरऑल डिस्टेंस क्या हो रहा है? डिक्रीज, मतलब Na/n ग्रेटर देन 1 चाहिए, और एनी फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 कब होता है? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कम, मतलब इधर आएगा माइनस साइन। करेक्ट? बिकॉज इट इज टेलिंग यू दैट डिनोमिनेटर इज लेस। तो ये आ गया आपका पहला केस। केस नंबर 2 में क्या होगा? केस 2 में ऐसा होगा कि सोर्स रेस्ट पे है और लिसनर जो है इट इज गोइंग टूवर्ड्स सोर्स। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे भी ओवरऑल डिस्टेंस तो कम ही हो रहा है। सोर्स रेस्ट पे है तो ये 0। अब यहाँ पे भी आपको Na/n ग्रेटर देन 1, मतलब न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन, हाँ तो प्लस आ गया, राइट? गुड। तो सिर्फ जनरल स्केलेटन मतलब स्ट्रक्चर याद रखो फॉर्मूला का, तो हो गया। अभी केस नंबर 3 ऐसा करते हैं, बोथ मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर बोलते हैं, बोथ मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। अभी बोथ मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर का मतलब ये होता है वापस से रिलेटिव डिस्टेंस हो रहा है कम, मतलब न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ऊपर प्लस नीचे माइनस, राइट? देन केस 4, listener at rest, right? And source is moving away. तो इस केस में when source is moving away, in this case पहले तो लिसनर को यहां से हटाओ, मतलब लिसनर की वेलोसिटी को हटाओ। ओके, अब ओवरऑल डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो Na/n लेस देन 1 चाहिए। फ्रैक्शन लेस देन 1 होने के लिए डिनोमिनेटर शुड बी ग्रेटर देन न्यूमरेटर, प्लस। करेक्ट? केस नंबर 5, सोर्स एट रेस्ट, लिसनर मूविंग अवे। मेरा मेरे फ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया, मुझे सुनना ही नहीं है, राइट? लिसनर इज मूविंग अवे, तू बोलता रहे आई एम गोइंग, राइट? ओके, so this is that case and it used to happen with us like during MSc के लिए पुणे यूनिवर्सिटी में कहाँ से स्टूडेंट्स आते हैं, they don't care, प्रोफेसर बोल रहा है चले गया वो, doesn't matter। तो यहाँ पे अभी बताओ कि क्या होगा। लिसनर जा रहा है, लिसनर जा रहा है का मतलब ये दूर जा रहा है, मतलब Na/n शुड बी लेस देन 1 एंड एज आई टोल्ड यू उसके लिए न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए। गुड। लास्ट केस
क्योंकि बाकी के जो केसेस है, लिसनर अप्रोचिंग सोर्स, सोर्स अप्रोचिंग लिसनर, वो हम लोग सॉल्व करेंगे, बट दैट इज स्पेसिफिक, डिपेंड्स ऑन वैल्यूज ऑफ VL एंड VS, उस पर डिपेंड करेगा। अदरवाइज आई कैन नॉट गिव यू जनरल एक्सप्रेशन, फिर मैं दे दूंगा, फिर सॉल्व करते वक्त प्रॉब्लम होगा। सो आई डोंट वांट टू डू दैट, क्योंकि it will depend on the values of velocities. Last case, both moving away from each other. So NA by N is equal to V, VL, VS. Away मतलब numerator should be less than denominator. Less मतलब ऐसा, करेक्ट। हो गया 6 केसेस। तो अभी ये 6 केसेस यूज करके एग्जांपल्स आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो 2 केसेस जो है वो हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। तो दिस आर दिस 6 केसेस। तो जनरल सिर्फ ये स्केलेटन याद रखो, मतलब ऊपर VL है, नीचे VS है। Na ग्रेटर देन N कब होता है, Na लेस देन N कब होता है, राइट। गुड। देन we are starting with next topic, that is stationary wave. This is going to be the last for the day, stationary waves, क्योंकि बहुत सारा थियरी इसमें लेना है हमको पूरे चैप्टर में। थियरी मतलब वी आर सॉल्विंग 80% ऑफ द क्वेश्चंस हियर, वो तो पूरा क्वेश्चन के फॉर्म में आता है, सिर्फ वैल्यूज देंगे, डॉपलर इफेक्ट सॉल्व करो। उसके बाद आपको पाइप ओपन एट वन एंड, पाइप ओपन एट बोथ एंड, पूरा थियरी मतलब वो न्यूमेरिकल्स ही है बेसिकली। गुड। देन stationary wave, as I told you, I'll just explain you the concept today. हमारे पास stationary wave, stationary wave मतलब a wave which is not progressive, मतलब which is not traveling continuously. It appears to us as stationary. That is what is also called as standing wave. अब standing wave कब दिखेगा? हमारे पास एक ही वेव है, 2 वेव है ही नहीं। ये याद रखोगे तो समझेगा एम्पलीट्यूड सेम है, ये याद रखोगे तो समझेगा फ्रीक्वेंसी भी सेम है, क्योंकि वेव तो एक ही है ना, हमारे पास 2 है ही नहीं वेव। और आपने बचपन में किया है, 100% किया है, सब करते हैं ऐसा। रबर बैंड लेते हैं, तोड़ते हैं, एक एंड मुंह में, दूसरा हाथ में, यू आर मेकिंग अ स्ट्रिंग लाइक अ गिटार। वही स्टेशनरी वेव है। उसमें लूप दिखते थे क्या? नहीं, ऐसे कैसा नहीं, लूप दिखेगा, अन्य दिखता है लूप। वो तुम फंडामेंटल मोड देख रहे हो ना, एक लूप दिखता था ना ऐसा, तो यू आर लुकिंग एट फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, राइट। गुड। तो देखेंगे हम बाद में फंडामेंटल मोड। द आइडिया इज हमारे पास एक ही वेव है, इट इज ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन, मतलब y1 इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t माइनस के एक्स 2 पाई बाय लैम्बडा, करेक्ट। अभी यही वेव रिफ्लेक्ट होके वापस आया, तो द सेम वेव इज कमिंग बैक इन नेगेटिव x डायरेक्शन, मतलब y2 क्या होगा, a साइन ओमेगा t, राइट। इसका मतलब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाया तो क्या होगा, इसमें से a कॉमन निकलेगा। नहीं, ऐसा कैसा जीरो, ऐसा करो, जीरो हो गया। साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स, साइन सी प्लस साइन डी, वापिस से वही 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे, फिर जो फाइनल इक्वेशन बनेगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।